بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کرائمیا برج پر حملہ، یوکرین نے ذمہ داری قبول کی۔ رشیا نے کہا امریکہ اور برطانیہ کا بھی گٹھ جوڑ ہے۔ رشیا نے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا۔ دنیا بھر میں فوڈ پرائسز بڑھ سکتی ہیں۔ یورپ، امریکہ اور چائنا میں جھلسا دینے والی گرمی، ٹیمپریچر کے نئے ریکارڈ بنیں گے۔ جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات۔ غیر معمولی گرمی کے لیے گلوبل وارمنگ ذمہ دار ہے، ایکسپرٹس کا بیان۔ کئی ملکوں میں الرٹ۔ ایران میں اخلاقی پولیس پھر سڑکوں پر اتر گئی، عورتوں کے لباس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ عراقی وزیر اعظم کا 12 سال میں پہلا سیریا دورہ، بشار الاسد سے ملاقات، دہشت گردی، ڈرگ ٹریفکنگ اور دوسرے مسائل پر بات چیت۔ سعودی عرب اور جاپان میں کئی سمجھوتے، فومیو کشیڈا نے کی جدہ میں محمد بن سلمان سے ملاقات۔ یمن ساحل پر جہاز سے تیل نکالنے کے لیے UN شپ کا آپریشن جاری۔ 26 اپوزیشن پارٹیوں کی بنگلور میٹنگ شروع، کامن منیمم پروگرام طے کیا جائے گا، سیٹ شیئرنگ اصل مسئلہ۔ UPA اور NDA کے طاقت کے مظاہروں کے بیچ اجیت پوار کیمپ نے مسلسل دوسرے دن کی شرد پوار سے ملاقات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ کرائمیا کو رشیا سے جوڑنے والے ایک اہم برج پر پیر کی صبح حملہ ہوا۔ اس حملے میں کم سے کم 2 لوگ مارے گئے۔ یوکرین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ رشیا نے اس حملے کے لیے دہشت گرد یوکرین، امریکہ اور برطانیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ کرائمیا برج پر آج کا حملہ یوکرین نے کیا ہے۔ یوکرین کی حکومت دہشت گرد ہے۔ اس حملے پر دنیا کی منظم جرائم کی تنظیموں کی چھاپ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین کے عہدیداروں اور فوج کے فیصلے امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ دہشت گرد ریاست کے ڈھانچے کے انچارج ہیں۔ یوکرین کے میڈیا میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس حملے کے لیے یوکرین کی سیکیورٹی ایجنسی اور نیوی ذمہ دار ہے۔ رشین عہدیداروں نے بتایا کہ حملے میں ایک بچی زخمی بھی ہوئی۔ اکتوبر میں بھی ایسا ہی ایک حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد صدر ولادیمیر پوٹین نے مغربی ملکوں کی طرف انگلی اٹھائی تھی۔ کرائمیا برج پر ٹریفک روک دی گئی۔ سوشل میڈیا پر کرائمیا برج پر حملے کے بعد کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ اس دوران کئی دوسرے مقامات پر حملے اور لڑائی جاری ہے۔ زپوریزھیا اور خیرسون میں رشیا کے حملوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اتوار کو کئی جگہ لڑائی تیز ہو گئی۔ رشیا نے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ڈیل کی مدت پیر کو ختم ہو گئی ہے۔ یوکرین سے اناج ایکسپورٹ کرنے کے لیے ڈیل کی مدت بڑھانے سے رشیا نے انکار کر دیا، حالانکہ اس سلسلے میں کوششیں جاری تھیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اناج ڈیل برقرار رکھیں گے۔ اس دوران کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ کرائمیا برج پر حملے اور اناج ڈیل کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے رشیا کے انکار سے دنیا بھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ڈیل کی وجہ سے دنیا بھر میں قیمتوں کو بڑی حد تک قابو میں کیا گیا تھا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی فوجی چوکی پر حملے کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو 6 منٹ کا ہے۔ حال ہی میں لبنان نے اسرائیل کے ساتھ 2006 کی 33 روزہ جنگ کی 17ویں سالگرہ منائی تھی۔ اس ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ کوئی بھی تمہیں زیر نہیں کر سکتا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مزاحمتی فائٹرز اسرائیلی چوکی پر قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں پر حزب اللہ کے بینرز لگا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب سرحد
सरहदों पर तनाव है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने चारशंबे को कहा था कि 2006 में हिजबुल्लाह की कामयाबी के बाद मुज़ाहमत और मजबूत हुई है और अब उसके सामने इसराइल भी कमज़ोर है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म शिया असुदानी ने सीरिया के सदर बशार अल असद से दमिश्क में मुलाकात की। ये 12 साला जंग शुरू होने के बाद से इराक़ी लीडर का सीरिया में पहला दौरा है। कई बरसों से इराक़ और सीरिया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि अरब मुल्कों ने दमिश्क से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया था। 2011 में सीरिया जंग शुरू होने के बाद से दमिश्क को अरब लीग से निकाल दिया गया था। बशार अल असद ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सुदानी का सदारती महल में इस्तकबाल किया। दोनों लीडर्स ने बाद में बताया कि उन्होंने सरहद पार ड्रग स्मगलिंग और सीरियन रेफ्यूजीज़ की वापसी के अलावा मगरबी पाबंदियों के बारे में बातचीत की। उन्होंने सीरिया में इसराइल के हमलों से लेकर दरियाए फ़रात में पानी की किल्लत तक और कई दूसरे मामलात पर बातचीत की। सूडानी के दफ्तर ने कहा कि दोनों लीडर्स ने दहशत गर्दी से मुकाबले में ताउन के बारे में भी बातचीत की। सूडानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते बशार अल असद ने कहा कि हमें कई चैलेंजेस का सामना है जिनमें दहशत गर्दी सबसे अहम है। दोनों मुल्कों में ईरान का अच्छा खासा असर है। तकरीबन एक दहाई पहले आईसिस ने इराक़ और सीरिया के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ईरान की मदद से लंबी लड़ाई के बाद इन इलाकों को छुड़ाया गया। हाल ही में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने सीरिया के साथ ताल्लुकात की बहाली शुरू की है और उसे अरब लीग में फिर से शामिल किया गया है। इराक़ में कोई 2.5 लाख सीरियन रेफ्यूजीज़ रहते हैं। पिछले महीने सीरिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद ने बगदाद का दौरा करते हुए सुदानी को दमिश्क दौरे की दावत दी थी। इराक़ में अगवा की गई एक इसराइली रिसर्च स्कॉलर के बारे में तफसीलात सामने आई हैं। इसराइल के चैनल 12 ने अरब सोर्सेस के हवाले से बताया कि एलिज़ाबेथ सरकोफ इराक़ में शिया फाइटर्स के बारे में रिसर्च कर रही थीं जब मार्च के आखिर में उसका अगवा किया गया। एक टीवी चैनल पर अगवा से पहले के चंद लम्हात दिखाए गए। रशिया ने कहा कि अमरीकी इत्तेहाद के फौजी जश्न अल तन्फ इलाके में पिछले कई दिनों से सीरिया की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। सीरिया की हुकूमत ने इस पर एहतजाज किया है। रशियन फौज के रेयर एडमिरल ने कहा कि 2 F-16 जेट्स और एक MC-12 जासूस हवाई जहाज़ ने अल तन्फ इलाके में सीरिया की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की। दिन में 5 मरतबा ऐसा किया गया। हाल ही में सीरिया के आसमान में एक से ज़्यादा मरतबा अमरीका और रशिया के जंगी हवाई जहाज़ आमने सामने हुए। मगरबी किनारे के रामल्ला में इसराइली फ़ौज ने एक फ़लस्तीनी औरत को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया। यह वाक़या एक फ़ौजी चौकी के करीब पेश आया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली सिपाहियों ने एक गाड़ी पर कई गोलियां चलाईं। गोली लगने से ये औरत ज़ख्मी हुई। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि मगरबी किनारे ने चैलेंजों और सख्त हालात में कामयाबियां हासिल की हैं। वो फ़लस्तीनी स्कॉलर्स के साथ ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से मगरबी किनारे में एक नई तब्दीली आई है। हमास लीडर ने गाज़ा को मुज़ाहमत की मजबूत बुनियाद करार दिया और कहा कि ये लंबे अरसे से मुज़ाहमत का असासा है। उन्होंने वार्निंग दी कि मौजूदा इसराइली हुकूमत से फ़लस्तीन कॉज को ख़तरा है। उन्होंने मुस्लिम उम्मत से कहा कि वो इसराइली मंसूबों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिडा से अस्सलाम पैलेस जद्दा में मुलाकात की। किशिडा मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। वो UAE और कतर भी जाएंगे। सऊदी अरब और जापान के बीच एनर्जी सेक्टर में तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई समझौते हुए। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब और जापान तमाम शोबों में आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। जापान अपना 80% तेल सऊदी अरब, UAE और कतर से हासिल करता है। सऊदी अरब और जापान के दरमियान 26 समझौतों पर दस्तखत हुए। जापानी अहदेदारों ने किशिडा के सऊदी दौरे को ताल्लुकात मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम और बेहतरीन मौका करार दिया। यूनाइटेड नेशंस का एक जहाज़ यमन के साहिल पर 6 महीनों से रुके हुए एक जहाज़ से तेल निकालने का ऑपरेशन कर रहा है। ये एक नाजुक ऑपरेशन है जिसका मकसद 1.14 मिलियन बैरल तेल निकालना है। इससे पहले ऐसे ऑपरेशंस के दौरान हादसात भी हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस यमन के हूसियों और आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत के दरमियान कई बरसों की बातचीत के बाद यूनाइटेड नेशंस का यह जहाज़ यमन पहुंचा।
दुनिया के कई इलाकों में इन दिनों गजब की गर्मी पड़ रही है। इनमें यूरोप, साउथ वेस्ट अमेरिका और चाइना शामिल है। यूरोप के कई मुल्कों में झुलसा देने वाली गर्मी है। मौसम ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि इटली, ग्रीस, तुर्की और बल्कान में गर्मी के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस हफ्ते सर्डिनिया में टेम्परेचर 47 डिग्री हो सकता है। इटली के ओहदेदारों ने 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बाज़ इलाकों में जंगल की आग लगने के वाक़यात पेश आए। चाइना में इतवार को बाज़ जगहों पर टेम्परेचर 52.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में लाखों लोग गर्मी से परेशान हैं। वहां ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि टेम्परेचर के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में इतवार को टेम्परेचर 53.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब तक जमीन पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं और अब ये हालात न्यू नॉर्मल बनते जा रहे हैं। जापान में ओहदेदारों ने 10 मिलियन लोगों के लिए हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी किया है। तुर्की के कई सूबों में ओहदेदार जंगल की आग से निमटने की कोशिशें कर रहे हैं। स्पेन में गर्मी की लहर शुरू हुई है जो कम से कम 4 शंबे तक जारी रहेगी। अमेरिका की वेदर सर्विस ने बताया कि इस हफ्ते साउथ और वेस्ट रियासतों में सख्त गर्मी पड़ेगी और इससे 80 मिलियन से ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे। ईरान में अखलाकी पुलिस फिर से सड़कों पर आ गई है, जिसका काम इस बात को यकीनी बनाना है कि औरतें और लड़कियां मुनासिब हिजाब पहने। पिछले साल अखलाकी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी नामी एक औरत की मौत के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे और गड़बड़ के वाक़यात पेश आए थे। इतवार को अखलाकी पुलिस को सड़कों पर पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया। बताया गया कि लिबास के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने के बढ़ते हुए वाक़यात के मद्देनज़र अखलाकी पुलिस गश्त इरशाद को उतारा गया। पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी की मौत का वाक़या पेश आया था। ईरान की सरकारी मीडिया में कहा गया कि इतवार से रवायती तरीका फिर से शुरू कर दिया गया है। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद से औरतों के लिए ड्रेस कोड लाजमी है और खिलाफ वर्जी पर 2 महीने की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। लौटते हैं इंडिया। 26 अहम अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स की अहम मीटिंग बेंगलोर में शुरू हुई। इस मीटिंग का मकसद 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को शिकस्त देना है। ये मीटिंग मंगल को भी जारी रहेगी। अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया है। कांग्रेस ने दिल्ली में सरकारी सर्विसेज के ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने का ऐलान किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपोजिशन मीटिंग में शिरकत का फैसला किया। मालूम हुआ कि अपोजिशन पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर गौर कर रही हैं, लेकिन असल मसला सीट शेयरिंग का है। अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग डिनर मीटिंग से शुरू हुई। कांग्रेस इस मीटिंग की मेज़बानी कर रही है। इससे पहले पटना में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें 12 पार्टियों के लीडर्स ने हिस्सा लिया था। मालूम हुआ कि अपोजिशन जमातें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मुश्तरका रैलियों के बारे में फैसले के लिए सब कमेटियां बनाएंगी। तृणमूल कांग्रेस भी मीटिंग में शरीक है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी का बेंगलोर में इस्तकबाल किया। ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। बीआरएस के चंद्रशेखर राव, वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के अलावा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक मीटिंग में शामिल नहीं है। अपोजिशन पार्टियों की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब एनडीए ने भी दिल्ली में ताकत के मुजाहरे का फैसला किया है। उम्मीद की जा रही है कि एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियां शिरकत करेंगी। सियासी माहौल में ये गर्मी एक ऐसे वक्त आई है जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस दौरान चिराग पासवान ने एनडीए मीटिंग से पहले अमित शाह से मुलाकात की। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और उनके कैंप के दूसरे अरकान ने मुसलसल दूसरे दिन मुंबई में एनसीपी सदस्य शरद पवार से मुलाकात की। एनसीपी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजीत पवार, सुनील गडकरी और मैं शरद पवार से मिले। हमने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की कि वो एनसीपी को मुत्तहिद रखें। उन्होंने हमारी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। एक दिन पहले भी अजीत पवार कैंप के लीडर्स ने शरद पवार से मुलाकात की थी। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब अजीत पवार दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, जबकि शरद पवार बेंगलोर में अपोजिशन की मीटिंग में शरीक हो रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि अजीत पवार और उनके कैंप के लीडर्स चाहते हैं कि शरद पवार एनडीए में शामिल हों। अजीत पवार का दावा है कि उनके पास एनसीपी के 53 में से 40 अरकान असम्बली हैं। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि वो बीजेपी की तायद नहीं करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
کرائمیا برج پر حملہ، یوکرین نے ذمہ داری قبول کی، رشیا نے کہا امریکہ اور برطانیہ کا بھی گٹھ جوڑ ہے۔ رشیا نے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا، دنیا بھر میں فوڈ پرائسز بڑھ سکتی ہیں۔ یورپ، امریکہ اور چائنا میں جھلسا دینے والی گرمی، ٹیمپریچر کے نئے ریکارڈ بنیں گے، جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات۔ غیر معمولی گرمی کے لیے گلوبل وارمنگ ذمہ دار ہے، ایکسپرٹس کا بیان، کئی ملکوں میں الرٹ۔ ایران میں اخلاقی پولیس پھر سڑکوں پر اتر گئی، عورتوں کے لباس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ عراقی وزیر اعظم کا 12 سال میں پہلا سیریا دورہ، بشار الاسد سے ملاقات، دہشت گردی، ڈرگ ٹریفکنگ اور دوسرے مسائل پر بات چیت۔ سعودی عرب اور جاپان میں کئی سمجھوتے، فومیو کشیڈا نے کی جدہ میں محمد بن سلمان سے ملاقات۔ یمن ساحل پر جہاز سے تیل نکالنے کے لیے UN شپ کا آپریشن جاری۔ 26 اپوزیشن پارٹیوں کی بنگلور میٹنگ شروع، کامن منیمم پروگرام طے کیا جائے گا، سیٹ شیئرنگ اصل مسئلہ۔ UPA اور NDA کے طاقت کے مظاہروں کے بیچ اجیت پوار کیمپ نے مسلسل دوسرے دن کی شرد پوار سے ملاقات۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔